Assalamu alaikum, everyone. This is Hasib. As a trainer of Diploma Human Resource Management and the certification in Human Resource, I'm basically teaching at Omni since 1 year, and I have international clients which I have already taught them regarding the human resource management, and locals also. Currently, they are already 3 to 4 students are already enrolled in this current program also, and it is classes are the timings on Saturday and Sunday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Saturday and Sunday, and this is where I'm teaching right now. In the as per project wise, as per working wise, I'm working at YKK Pakistan. It's a multinational company, it's a Japanese firm, and where I'm working as executive over there. I'm leading a team also, and I have a portfolio around 150 of the clients which I'm dealing right now currently. Yes, my education is a master's in marketing and bachelor's in human resource management, and I'm a certified trainer from a school of leadership, and I've done different trainings and attended different workshops from this platform of the school of leadership, and currently doing also. Currently, I'm also studying at a virtual university related to different skills certifications regarding to digital marketing, freelancing, content writing, and search and engine optimization. These 2 courses I've done, and to further is content and SEO is currently I'm studying. So, as per situation in current, the human resource management is totally, I would say, it's a personal management also. And regarding the personal management, you have to see what kind of resources you are looking for, and how what are the resources you need, and what kind of resources will be no use in future, and how the current resources you are utilizing, and how you can take out the best of that resources also. And that's how in organization human resource management HR is doing like this thing. In starting, if a person is vacancy is there, is absent for temporary basis, the work will be distributed among the department or the some designated person, and then otherwise that vacancy needs to be filled out, then the correct person needs to be trained, needs to be guided, and then he is performing that duty as per HR or any other department. Now, as a language I'm speaking will be in Urdu and English, both types of speaking, so you can easily understand what is related to HRM, and what kind of skills we need, and what kind of things we required regarding this thing. जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब दाखिल हो रहे होते हैं जॉब के सिलसिले के अंदर, तो एक आपसे डिमांड कर रहे होते हैं सीवी, लेकिन वो सीवी के बैक साइड पे बैक स्टडी बहुत होती है, और वो एचआर डिपार्टमेंट करता है, और एचआर डिपार्टमेंट ऐसा से देख रहा होता है कि पहली चीज के क्या वो किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है या नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट है तो किस टाइप की जॉब रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. मैं आपको करंटली ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ. मेरी टीम के अंदर एक करंट रिसेंटली द पर्सन टीम मेंबर हैव रिजाइन, तो वैकेंसी आ गई है, मतलब जगह खाली है. तो उसमें पोजीशन ये हुई है कि इस वक्त करंटली के एक मिनट ये जरा ओके, currently ये चीज चल रही है कि HR is searching right now. So meanwhile all the work is जितना भी
पर्सन का जितना भी काम था वो सारा मेरे पास लोड आया हुआ इसमें, and I'm currently handling that load, and I'm delivering it to the customer and doing all the assisting to the customers also. अब नया बंदा आता है जो भी मेरे डिपार्टमेंट में आता है तो उसकी ट्रेनिंग मुझे करनी है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब हम पढ़ रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ HR से हद तक होती नहीं, वो हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है। और हर डिपार्टमेंट में जो जिस बंदे के पोजीशन में या जिस डिपार्टमेंट में जाता है तो उसका जो सीनियर मैनेजर या सीनियर पोजीशन का होता है वो उसको ज़रूर गाइड करना होता है और वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। अब एज ए HR पर्सन इस चीज़ को बड़ा अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत होती है कि हमें किन चीज़ों के ऊपर लुक आफ्टर करना होता है, और वो 5 एलिमेंट्स रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। और वो 5 बेसिक्स फंक्शंस होते हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। जब हम प्लान करते हैं तो प्लान से मुराद है कि आपने किस तरह से, आपका गोल क्या है, मीन्स कि आपने बंदे को हायर करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम बैचलर्स होना चाहिए, और थोड़ा बहुत वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ स्किलफुल कितना है। जब ये चीज़ आप प्लान करते हो तो फिर स्टाफ को रिक्रूट करते हो, ठीक है, और इसको स्टाफ को रिक्रूटिंग करते हो, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। फिर आपकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की कुछ SOPs होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं टू मीट द बेंचमार्क फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट द रिवॉर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। और आप फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना चाह रहे हैं तो उसके एक SOPs और एक स्टैंडर्ड्स होंगे। तो उसको स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आपको कंट्रोलिंग करनी होती है स्टाफ के ऊपर, ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिक टास्क हम प्रोवाइड होते हैं जिसे हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब एनालिसिस, जिसके बेसिस पे वो आप काम कर रहे होते हैं। अगर आपका बॉस या कोई काम एक्स्ट्रा भी आता है तो वो आपको टास्क दिया जाता है, तो यू हैव टू डू दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। और जब आप जब ये चीज़ें होती हैं तो इंसान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये किसी भी स्टेज लेवल पे मोटिवेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, ब्लॉकेज आती है, करियर ग्रोथ, स्ट्रेस वगैरह, कभी घर के मसले मसाइल होते हैं या कभी ऑफिस के अंदर मसले मसाइल होते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स में ये हर जगह देखा जाए तो वो आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ लोग रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा टीम लीडर या अच्छा बॉस होगा तो वो आपको ज़रूर मोटिवेट और गाइड करेगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, डांटेगा ज़रूर, सुनाएगा, लेकिन एंड रिजल्ट उसकी डांट है ना, आप उससे लर्न करो। ये नहीं है कि आप उसने डांटा, उसने बदतमीजी की, नहीं, बदतमीजी की है तो ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अगर बदतमीजी का उसको मौका ही ना दो। अगर मौका नहीं देना चाह रहे तो उसके ऊपर वर्किंग करो। वर्किंग कैसे करना है, मोटिवेट करो अपने आप को, सोल्यूशन की तरफ जाओ। जब प्रॉब्लम आती है तो देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन आपके पास होता है क्योंकि प्रॉब्लम आपको नजर आ रही होती है, दूसरों को नजर नहीं आ रही होती। जब हम ह्यूमन रिसोर्स की हम बात कर रहे होते हैं तो साथ साथ इसकी अगर आपके कोई सवालात हों पार्टिसिपेंट्स तो आप मुझे अपने बता सकते हैं, ठीक है, या टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं टेक्स्ट के थ्रू मैं देखकर आपको फिर उसके आंसर भी इसके थ्रू दे सकूँगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो मेन चीज़ ये है कि द पॉलिसी एंड द प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द पीपल और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्टिंग अ मैनेजमेंट पोजीशन इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड रिवॉर्डिंग। हमेशा बात याद रखिएगा कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे होते हैं तो इंसान चाहता है कि यार अब मुझे 3 साल हो गए, मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, या 2 साल हो गए तो मेरा इंक्रीमेंट होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। बंदे की ख्वाहिशात होती है, बंदा एवरी पर्सन नीड्स टू ग्रो। अब वो आपकी जो ग्रोथ है वो क्या आपका टारगेट है, यार मैं अच्छा काम करूं तो पोजीशन के थ्रू, नहीं, आप कस्टमर के एंड, मेरा ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं जो मेरे कस्टमर्स हैं मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करूं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करूं,
और वो जो सपोर्ट के दौरान में जब वर्किंग होगी तो मेरा रिजल्ट मेरे बॉस को नज़र आना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा काम कर रहा है। इसलिए शेयर स्लाइड थी, स्लाइड से आप ईमेल की बात कर रहे हो वकास? अगर आप कोर्स लेते हो तो ये तमाम जो पोजीशन जो चैप्टर्स होते हैं HRM के, वो तमाम के तमाम आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड होंगे। वर्कशॉप में आप ये जस्ट लर्न कर सकते हैं यार, इसको आप इसके नोट्स आप बना सकते हो। आई विल से अच्छा जी, ओके। फिर हम नेक्स्ट जो मेन चीज़ आती है HRM के अंदर, एक छोटी सी एक मिसाल कहूँगा वकास कि आप अपने एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब ये चीज़ें हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन, जब हम घर की एक मिसाल में आपसे वकास में आपसे बात करूँगा कि जब घर के अंदर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो आप क्या चीज़ करते हो? ठीक है, जब आप घर के अंदर ज़रूरत होती है तो आप रिसोर्स की तरफ जाते हो, नहीं तो आप वो चीज़ परचेज करते हो। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको बेसिकली क्या स्ट्राइक आउट कर रहे हो, तो ये चीज़ ख़त्म हुई मुझे ये करना है, नहीं तो आप क्या करते हो थोड़ा सा बैकअप करते हो। अगर ये चीज़ ख़त्म होगी तो मेरे पास पीछे से ये बैकअप है तो वो मैं उसको इंक्लूड करूँगा और वो ख़त्म वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता ये है कि जब हम जूनियर टू हायर लेवल, अब मैं यहाँ से एक थोड़ा सा एक बेंचमार्क रिक्रूटिंग और HR प्लानिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। HR प्लानिंग में क्या देख रहा होता है कि यार ये बंदा हमारे यहाँ 60 साल का हो चुके, अब इसकी रिटायरमेंट है, अगर ये 61 का होगा तो अब ये रिटायर होगा। ओके, और इसके पीछे जो नेक्स्ट बंदा कौन है, 55 वाला साल का जो बंदा बैठा हुआ है, इसको हम प्रमोट करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, अगर वो फॉर इंस्टेंस अगर ही और शी एक्सपायर तो देन डेफिनेटली जो भी नेक्स्ट बंदा होगा उसको हम आगे फ्रंट फुट पे लेकर आएंगे। अब ये जब आप बात देख रहे हो तो ऊपर की जो पोजीशंस को जब आप देख रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली जब रिटायर, ये ऊपर का जो पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये बड़ा आसान पार्ट होता है टू प्रमोट द लोअर टू हायर लेवल टू स्टाफिंग में। ठीक है, जब बॉटम में बात आती है, बॉटम में ये होता है कि यार अचानक से बंदा चलो के आया छोड़ के चला गया। ठीक है, आप उसके ऊपर ज़्यादा अपना थोड़ा सा टाइम लगा रहे होते टू हायरिंग अ करेक्ट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो नीड होते हैं या जिनको रिक्वायरमेंट होती है जॉब्स की, तो आप उनको हायर कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस लॉकडाउन के थ्रू बहुत से लोग जॉब्स को जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे उनको खैर बार भी किए। उसकी वजह ये थी कि डेफिनेटली जब प्रोडक्शन नहीं है तो वो परमानेंट को उन्होंने रखा रहा, लेकिन अब डेफिनेटली जब लॉकडाउन फैक्ट्रीज ओपन हुई, वर्किंग स्टार्ट हुई, तो अब इस वक्त क्या सिचुएशन हुई है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उन्होंने हायरिंग बंद की हुई है। ठीक है, जब हायरिंग बंद की हुई है तो डेफिनेटली जब कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोड आता है प्रोडक्शन के अंदर, तो डेफिनेटली द नीड स्टाफ टू ओवरकम द ऑल दी थिंग्स। ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस जो टाइम लोड लग रहा है, अगर एक दिन के अंदर अगर 1,00,000 पीस बनाने और वो बन रहा है आपके सिर्फ 50,000 पीसेस, तो वो 50,000 का ड्रॉप बैक आ रहा है, और वो ड्रॉप बैक के लिए वो स्टाफ को हायर करते हैं, क्या करते हैं वो डबल शिफ्ट चलाते हैं। ये HR प्लस डिपार्टमेंट हेड प्लस हायर मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के जो अपर मैनेजमेंट जो डायरेक्टर्स होते हैं, CEOs होते हैं, वो इन चीज़ों को बड़ी बारीकी के नोट पे देख रहे होते हैं और फिर जो सोल्यूशन फिर वो खुद ही निकाल रहे होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तमाम चीज़ें HR के थ्रू होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसकी वजह ये कि HR इज़ बेसिकली मेजर बॉडी बेसिकली, ठीक है, बैकबोन होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अगर वो अगर उसका सेल का एक हाथ है, अगर वो टूट गया तो दूसरा हाथ इस्तेमाल होना
लेकिन उसकी बैकबोन स्ट्रांग है, बैकबोन खड़ी हुई है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्टडी खड़ी हुई है। अगर बैकबोन के अंदर अगर हल्का से भी गैप आया, कुछ ब्रेक हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन वो कोलैप्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये हमेशा बात याद रखें कि मेरे पूरे कोर्स के अंदर फाउंडेशन के ऊपर ज़्यादातर बात होती है, क्योंकि फाउंडेशन इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ एनी कहूँगा कि बिल्डिंग की। जब तक बेस स्ट्रांग नहीं है, बेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बेस आप खड़ा नहीं कर सकते ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अगर बेस वीक है तो स्ट्रक्चर भी आपका वीक होगा। अगर फ्रीलांसिंग, अगर फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्टेड हो करियर बनाने में, ठीक है, एज अ करियर गाइड कहूँगा, तो यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्किल्सफुल, यू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आते हो तो बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टडी करते हो, आप एक दिन के अंदर चीज़ें नहीं बनती। यू स्पेंड टाइम टू डेली बेसिस पे, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दो थिंग्स कि यार ऑफिस एनवायरनमेंट क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे किस तरह से डिलीवरेंस करना है, मेरे क्या टाइमिंग्स है, वो तमाम जो पैरामीटर्स हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू आर स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑन इट। अगर आप लेट आते हो तो ये आपकी सैलरी डिडक्ट होती है, इसकी हम कंपनसेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से अगर ट्रेनिंग करवानी, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं। हमेशा बात यह रखें कि एचआर के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। विदाउट एनी स्ट्रैटेजी आप वर्कआउट नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनाइजेशन की हो या आपकी खुद की हो। एक आप गोल सेट करोगे तो उसके गोल सेटिंग के बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी ड्राइव आउट करोगे कि हाँ यार मुझे काम किस तरह से डिलीवर करना है और मेरे पास जो स्किलफुल है मैं किस तरह से अपनी स्किल्स को इनकैशन कर सकता हूँ। ठीक है, होल्ड कीजिए एक मिनट। ओके, जब आप स्ट्रैटेजी के साथ साथ ये भी बात कर रहे होते हैं कि यार लॉन्ग टर्म के अंदर मेरा कितना बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर कितना होगा और मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को फेस करना है, हमेशा बात याद रखें वकास के जब भी आप उसके ऊपर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो आपसे एक बात पूछा जाएगा कि आपके स्वॉट एनालिसिस के, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं। जब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप नोट डाउन करोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो वो आपकी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं। जब हम इन दो एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी ड्राइव आउट होती है, और जब आप स्ट्रैटेजी किस तरह से ड्राइव आउट होती है उसके ऊपर आप यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट के यार एक स्ट्रेंथ आप पकड़ते हो, फिर अपॉर्चुनिटीज़ का एक पॉइंट पकड़ते हो, स्ट्रेंथ के पॉइंट के साथ दूसरे पॉइंट्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के साथ उनको मिक्सिंग करते हो। ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, वरना ये मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ मैं, ठीक है। इवन के जब मेरी कोर्स स्टार्ट होता है मैं स्टार्टिंग में हमेशा ये एक्सरसाइज करवाता हूँ, क्योंकि ये हमेशा बात ये रखें जब स्ट्रक्चर किसी का खड़ा करना है तो बेस उसकी बनानी पड़ती है। आप एचआर बना रहे हो, एचआर की कोर्सेज पढ़े तो आपको स्ट्रेटेजी नहीं बनाने पाओगे तो आप डिलीवरेंस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। And you have to make decision making according to the situation and move on, ठीक है। ये तमाम चीज़ें कैपेबिलिटीज इंसान को देखनी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और चीज़ें देखनी। हेलो सर, जी आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर, जैसे भी आपने बताया था स्ट्रेंथ और वीकनेस का, मेरा भी मतलब काफ़ी इंटरव्यू में जो है मतलब इस तरह के सवाल किए गए हैं, लेकिन सर आपको ये पता होगा कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी जो है वीकनेस नहीं बताना चाहेगा, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, मतलब हम इंटरव्यू के अंदर अपनी वीकनेस बताएं कि भाई मैं इस काम के अंदर कमज़ोर हूँ या मैं सुस्त हूँ, मुझे ये काम पसंद नहीं है? स्ट्रेंथ तो हर कोई बताना पसंद करेगा। अच्छा, जब आप देखो ये तो स्ट्रेंथ हर कोई बताता है, वीकनेसेस भी अपने आप को पता होनी चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो स्ट्रेंथ के साथ जब हम स्ट्रैटेजी में किस तरह से करते हैं कि वीकनेस का पहला पॉइंट लेते हैं और अपॉर्चुनिटीज आपके पास कौन सी है, ठीक है, वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। आप उसके साथ एक स्ट्रैटेजी, एक स्टेटमेंट बनाते हो। फॉर एग्जांपल वीकनेस है आपकी लेजीनेस, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ये है कि यार मुझे ये गोल अचीव करना है, आप क्या स्ट्रैटेजी मेक करोगे
कि यार मुझे अपनी लेजीनेस को कम करना है और मुझे उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना है। वंस यू ड्राइव दिस थिंग